Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic comparing quantities. As we have seen yesterday, I was really very happy seeing your all the work again. After so many time, you must have sent me the work. I was very happy. Uh, I was very happy for what that you are watching the video every day. So looking that really motivated me and inspired me to make better videos. So it's a really very good thing that when you send some messages, when you send some any kind of some feedback, whether positive or negative, that is immaterial. But what I understand is nothing but you people are really interested in watching the video, and in case if you find anything wrong or any issue or anything correct or good, everything you're sharing with me, that is really very important. And believe me, your solutions is nothing but the reflection of my teaching. So when I see your solution, I really feel so nice, so good, that I just feel like when I saw the last message, when I saw, I'll tell you, maybe I think at 11:30 night, I could see the pic of one of the child who sent me that day, that time. I was so happy, so happy. That time I felt that I should get up and start making new video. That that extent, till that extent, you all people motivated me. Okay, so thank you so much. So let's continue our next video based on this. And today, on the background of on the foundation of yesterday's video, I'm going to continue with the exercise. The very first exercise, this is 6.1 or 8.1, I don't remember. 8.1, yes, this is 8.1. You can check your exercise in your textbook. Okay, it is there. So we'll be working on this now. तो सबसे पहले what we have is nothing but find the ratio of the following quantities. रेशियो जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी का यूज़ करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, द फर्स्ट वन शुड बी टेकन एट द न्यूमरेटर एंड सेकंड वन शुड बी टेकन इन द डिनोमिनेटर. रिमेंबर दैट. तो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड द स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर. द रेशियो इज, ऐसे लिखते हैं, रेशियो विल बी स्पीड ऑफ साइकिल 15 अपॉन स्कूटर का स्पीड 30. Convert into simplest form, that is 15 twos are to 1 by 2. Make sure that the unit of both the quantities is same, the kilometer and the kilometer. Kilometer per hour and kilometer per hour. The unit should be same at any cost. If it is not same, you have to convert it. जैसे कि in the next question I am going to deal with. तो यहाँ पे quantity दिया है, ratio हम लोग लिखते हैं. First quantity is 5 meter. एंड सेकेंड क्वांटिटी इज 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. के मतलब 1000, आपको पता है, आपने कभी कभी सुना होगा ना, सैलरी, आई हैव 25K, आई हैव 50K. दीज आर सैलरीज. व्हाट इज दैट के? के मीन्स 1000. ओके, सो 10K मीटर, ऐसे हम लोग सोचते हैं. 10K मीटर मतलब क्या? 10,000. सिंपल सी बात है, 10,000 है ना. 10K मतलब 10,000. मीटर, मीटर हो गया. तो इट्स वेरी सिंपल. किलोमीटर टू मतलब कन्वर्जन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इजंट इट? अभी इसको कन्वर्ट करो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इट इज 1/2000. तो दैट्स नॉट द डिफिकल्ट डील, इजंट इट? सी क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे तो 50 पैसे, तो रेशियो जो होगा विल बी इक्वल टू 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ इज इंटू 100, है ना. 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. 5 रुपीज़ 500 पैसे. तो ये रहा 500 पैसे. ठीक है, 0 0 गेट कैंसिल. 1/10 इज माई रेशो. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं. ए वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 हम लोग क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं. रिमेंबर दैट. ओके, तो हमने येस्टरडे भी देखा था, दो क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए रेशियो लो और उसको डिवाइड करो और इंटू 100, है ना. तो 3/4 इंटू 100, है ना. दैट्स इट. तो इट इज 4 1s 4, 4 25s 25 इंटू 3 75%. वैसे 2/3 कर सकते हैं आप लोग. तो बी वाला जो है वो 2/3 है इंटू 100. तो ऑफकोर्स आई नो दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डिविजिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट विल बी 200. ऑफकोर्स इट इज़ 100/1, ये पता है ना आपको. तो 200/3 हो जाएगा ये. तो 3 6 18, 3 6 18.66. तो ये रहा आपका परसेंटेज. ठीक है, इज दिस क्लियर? चेंजिंग ऑफ द कलर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डीलिंग विथ. देखते हैं, यहाँ से आपका एक्चुअल टॉपिक शुरू हो जाता है, जहाँ जो मैंने है ना कल एक्सपेक्ट किया था, जो आपने कंप्लीट किया, इसी के लिए एक्सपेक्ट किया था कि आपको आज का ये जो हम लोग एक्सरसाइज लेने वाले ये डिफ़िकल्ट न जाए.
ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अपना जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से समझना है, दैट्स इट। देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, 72% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, कितने होंगे, 72% ऑफ 25, मतलब क्या है आपको पता है, 72/100 इंटू 25, राइट। तो 25 1 25 4 जा, ये रहा, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे लिखता हूँ अभी 4 1 जा 4, 3 लेफ्ट, 4 8 जा 32, तो 18 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, बराबर है कि नहीं है, एग्जैक्टली। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सो 25 माइनस 8, 25 टोटल है, 18 इंटरेस्टेड है, तो बच्चे हुए कितने, नॉट इंटरेस्टेड, तो स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, ठीक से लिखना है बस, और कुछ नहीं। 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 19 20 21 22 23 24 25, 7 हो गए बस, दैट्स इट। 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, दैट्स इट। इसको और एक तरीका है, अल्टरनेटिव मेथड, तो सेकंड मेथड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दिस मेथड अ लॉट। ठीक है, मेथड क्या है, देखो 72 स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा, 72% स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो कितने परसेंट को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 72, कितने बच गए देखते हैं, 8 एंड 18, नहीं 28, ठीक है, तो 28% स्टूडेंट्स डोंट लाइक मैथमेटिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। देखो 100 में से जो 72% को मैथ्स अच्छा लगता है, लेकिन उसमें 28% जो बच्चे हैं उसको, उनको क्या है, मैथ्स अच्छा नहीं लगता है ना, बराबर है ना। सो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इज इक्वल टू 28% ऑफ 25, जो 25 है उसमें से 25 जो है उसमें से 28% को मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, मतलब क्या, 28/100 इंटू 25, तो 25 1 25 4 ऑफ कोर्स, एंड 4 1 जा, ये 4 रहा, 4 1 जा 4 7 जा, ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट, समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इट्स वेरी नाइस वन, जो डायरेक्टली हम लोगों को लेफ्ट आउट जो भी परसेंटेज है वो दे देता है। 100 माइनस 72 को सेपरेट करो, काम खत्म, इजंट इट क्लियर, गॉट द आइडिया। तो दोनों मेथड हमने बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है आप लोग वो फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों इंटरेस्टिंग भी है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कितना इफेक्टिव हो रहा है जब आपको परसेंटेज, कल हमने जो भी शुरू किया, एक सिंपल वे से हमने परसेंटेज को समझा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स बिकम्स ईजी, ओके, इससे भी और ईजी होने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस, तो चलो 10 मैचेस उन्होंने जीते, आउट ऑफ द टोटल मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, पता नहीं टोटल मैचेस कितने थे, तो टोटल नंबर एक्स पकड़ लेते हैं, मतलब ये नीचे आएगा आउट ऑफ, है ना, 10 में से एक्स, मतलब कितना होगा, 10/x, ऐसे है ना, आउट ऑफ पता नहीं है, जो पता नहीं उसको हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%, तो उनका जो परसेंटेज ऑफ विन है वो 40% है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, मतलब कितने मैचेस, मतलब एक्स फाइंड करना है, ठीक है, देखते हैं, चलो कमा। परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखो ऑब्टेन मार्क्स, मैं एक एग्जांपल है, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 गिव्स यू परसेंटेज, ये रहा आपका फॉर्मूला, बराबर है ना, ये पता है ना आपको, ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100, ये देता है आपको परसेंटेज, कल भी हमने देखा था, जो मिला है अपॉन व्हाट, इंटू 100। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग करते हैं, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, ठीक है। 10 मैचेस उन्होंने खेले, 10 मैचेस उन्होंने जीते, आउट ऑफ कितने पता नहीं कितने, तो x इंटू 100 गिव्स यू 40, बराबर है कि नहीं 40, बराबर है ना, सिंपल सी बात है, जो परसेंटेज है वो मुझे मिलेगा, दैट्स इट। अभी जो भी मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है, ऑफ कोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, वो मैं सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर, बराबर है ना। तो अभी एक सम पॉइंट करेंगे, देखते हैं
100 को इधर शिफ्ट किया, 10 को इधर शिफ्ट किया, जैसे भी मैं सोच रहा था x अगर नीचे तो इसी को इधर शिफ्ट करता हूँ, 40 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, दैट वुड बी ईजिएस्ट वे। तो इसका मतलब आएगा 10 इंटू 100/40 इज इक्वल्स टू x। देख लो, ठीक से देख लो, x को इधर शिफ्ट किया, 40 को इधर शिफ्ट किया, समझ में आया? आ गया ना? सिंपल सी बात थी, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, 25 जा, तो x विल बी इक्वल टू 25। तो टोटल कितने मैच खेले उन्होंने? 25। देखते, देखो 10 जीते उन्होंने 25 में से, इसको इंटू 100 किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए? परसेंटेज मिलना चाहिए, तो हो गया देखो 40%। दिख रहा है? वही आंसर है, वेरीफाई भी कर दिया मैंने। ये फॉर्मूला बस याद रखो आपको। हाँ, देर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट इन योर स्कूल यू आर टॉट इन सम डिफरेंट मेथड, ओके, देर इज नो इशू इन केस इफ यू आर एबल टू सॉल्व बाय एनी मेथड, any method. I follow this method because this will be helpful in all the exercises after this. ओके, तो आपको अगर स्कूल वाला मेथड पता है तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल आंसर करेक्ट आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। ओके, मेरे लिए मेथड अलग कुछ भी हो, आंसर करेक्ट रहता है, सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। इफ चमेली, क्या नाम है यार ये, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, ओके, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑन हर मनी, 75% ऑफ हर मनी, उसके पास कितने थे वो पता है नहीं है, तो उसके पास इमेजिन करो x अमाउंट थी, टोटल अमाउंट। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, मतलब जो इन द बिगनिंग जो था वो x था, उसमें से उसने 75% खर्चा कर दिया, ओके, और ये बचा है, तो ₹600 इज लेफ्ट, विच इज 75% उसने खर्चा किया है, तो कितना बचा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, वो इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस क्वेश्चन में किया था, याद है? यू रिमेंबर दैट? इस क्वेश्चन में किया था, 3rd क्वेश्चन में, जो लेफ्ट आउट बचा था, लेफ्ट आउट देखा था हमने 100 में से जो भी बचा है, तो ₹600 जो 600 है वो लेफ्ट आउट है, तो परसेंटेज भी लेफ्ट आउट होना चाहिए ना। तो कितना है लेफ्ट आउट परसेंटेज? 75 खर्चा किया, तो लेफ्ट आउट 75 शी स्पेंट, तो व्हाट इज लेफ्ट देन? लेफ्ट इज 25%, बराबर है ना? कैसे आया 25%, कौन बताएगा? इज 100 माइनस 75, 25। तो इसका मतलब क्या है? विच इज 25% ऑफ हर टोटल मनी। मतलब क्या है? देखो टोटल मनी क्या है? x है, मतलब 25% ऑफ x विल बी इक्वल टू 600। समझने की कोशिश करो, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो x इज हर टोटल मनी, उसमें से उसने कितना सेव किया है? सेव्ड इट 25%, तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। 600 इज नथिंग बट इसका लेफ्ट आउट मनी, बराबर है ना? अभी हम लोग उसको मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 25/100 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 600। देखो कितना सिंपल सी बात है, शिफ्ट कर दो, x इज इक्वल टू, देखो x तो ऊपर ही है तो उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। इन प्रीवियस क्वेश्चन x नीचे था, दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड दैट टुवर्ड्स द अदर साइड। यहाँ पे तो x ऊपर है, इसको हिलाएंगे नहीं, बाकी शिफ्ट कर देते हैं। 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 25 4 जा 6 4 जा 24, तो ये रहा आपका टोटल मनी। सो हाउ मच शी हैड देयरफॉर ₹2400 शी हैड बिफोर। बात समझ में आ गई? कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला था कि आपका जो कल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर ठीक से किया होता, किया है आपको सब लोगों ने, सबने मुझे सेंड किया ऑलमोस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। इक्का दुक्का पीपल है, दोज हु कुडंट सेंड इट टू मी, ओके, मे बी देयर कैन बी सम इश्यूज, यू नो, even this corona virus is actually reaching to each house now, each house, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, गणपति है, ऑल दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अभी करो, ओके। तो पहला वाला वीडियो, यस्टरडे वाला वीडियो आप लोग अगर ठीक से करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आने लगेंगी, ओके। चलो देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन किसको समझ में आता है। चलो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है, 60% जो है उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, 30% जो है उनको फुटबॉल अच्छा लगता है, एंड रिमेनिंग, अभी रिमेनिंग कितने हो गए पता नहीं, 30 60 कितने हो गए, 90 मतलब रिमेनिंग कितने हो गए, 10 हो गए। 10% लाइक अदर गेम्स, सॉरी, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, व्हाट परसेंट, ऑफकोर्स 10%, वो तो आंसर ही आ गया, अभी वो क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर आ गया हमारा। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख पीपल है, तो एग्जैक्ट हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम,
अरे ये तो सिंपल सी, बहुत सिंपल है। टोटल 50 लाख है, टोटल दिया है तो बात ही खत्म होगी ना। देखो 60% ऑफ टोटल लाइक क्रिकेट, 30% ऑफ टोटल लाइक फुटबॉल एंड 10% ऑफ टोटल लाइक क्या अदर गेम। ये टोटल की जगह पे क्या आना चाहिए बताओ जरा, टोटल नंबर, मतलब क्या 15 लाख, 115 लाख। नंबर थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन है बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। सॉल्व कर सकोगे? सॉल्व करो, वेरीफाई करो आपके आंसर को या फिर कमेंट करो, आई विल बी चेकिंग इट। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। आपका पहला वाला एक्सरसाइज जो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, वो खत्म हो गया। इन शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इटसेल्फ एंड उसके बाद हम लोग साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।